हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हैप्पी चिर्प। आज मेरे पास एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है ऑन द पॉडकास्ट हु ऑल्सो हैपन्स टू बी माई बिजनेस पार्टनर एंड वील गेट टू दैट एज वेल। बट पश्मीना, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू हमना? मैं ठीक हूँ। कैसा फील कर रही हो? नर्वस। अंडरस्टैंडेबल। हाँ, बस भूल जाओ कि कैमरा है. जस्ट टॉक टू मी लाइक यू टॉक टू मी. Yes, I'm gonna try that because it's difficult with all the cameras. हाँ, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है. Yes. And you don't worry, slowly in the conversation you will I hope so. forget about it, hopefully. हाँ. So Pashmeena, we'll get right into it and we'll start with your life and your background. ठीक है? So tell us कि कहाँ पैदा हुई, कहाँ बड़ी हुई और लाइफ कैसी थी, चाइल्डहुड कैसा था? मैं पैदा इंग्लैंड में हुई थी. I was in Glasgow. My father was a doctor there. And तो हमने पहले शुरू कुछ साल इंग्लैंड में गुजारे. उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि यार बच्चों को पाकिस्तान लेके जाना है. So you know they're in touch with their culture and family and everything. So we came back. फिर जब आए हैं हम यहाँ पे तो बाबा got a job in Islamabad. We settled here. And तब से लेके अब तक we've been in Islamabad. On and off होता है कि education के लिए this and that we have to go. लेकिन my family is based here. Based here. Yeah. Where are you from? So my father's from this village called Sakhakot. So I'd say I'm also from there. Lekin I think I'm more of a Islamabadite, so I consider myself from Islamabad. Yeah. When did you move back from England? कितने साल की थी? I think I was 3.5 or 4, कुछ इस तरह. फिर इस तरह एज में आई थी, फिर हम बीच में फिर चले गए थे, फिर वापस आई थी. When I started my schooling here, I was about 7-8. मतलब मैं class 1 से Beacon House join कर लिया. So तुम्हारी जो clear living memory है उसमें you've always been here. Always been here, always been going to F72 वाला, I think F72 वाला Beacon House main road पे थे. And मुझे बस वही clear memory उसी चीज़ के. Obviously when I look at pictures I feel like I know कि मैं उधर रही थी, लेकिन I don't think I remember much of it. So मेरी schooling सारी यहीं से थी, इस्लामाबाद से. अच्छा. So belonging to a place like Sakhakot and then going to England and then living your whole life in Islamabad. So I'm sure cultural differences भी होंगे. So what was your authentic जो family background होता है ना, वो कैसा था and then how did it play into your life and everything? So मेरे my mother side and my father side वो लोग दोनों गाँव में ही होते हैं. Majority of my family. My dad, I would say, is the first properly educated man from my father's side. My grandfather was a farmer. और उसके अलावा my uncles and everyone, they still live there. उनकी एक बड़ी humble सी life है. My dad got out of that. He got educated. उन्हें था कि मैंने अपनी ज़िंदगी change करनी है because he wasn't happy with that environment. And he was very intelligent as well. So उन्होंने वो step लिया. उसके बाद से एकदम से एक major right से class difference आया. हर चीज़ का डिफरेंस आया. एंड इट्स सो स्ट्रेंज कि व्हेन वी गो बैक देयर, वहाँ पे बल्कि तुम गई हुई हो मेरे साथ. मैं पश्मीना के गाँव गई हूँ. हमें पर्दा करना होता है, हमें चादर ओढ़नी पड़ती है, हम वहाँ पे उस तरह होते हैं. माई डैड सेज व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स, वो वाला सीन होता है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग ओवर देयर. इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि obviously they don't understand कि हमारे life experiences and everything is very different. My close uncle and aunts, they understand that. लेकिन जो obviously extended family होती है और फिर उनके बच्चे होते हैं and stuff, उनको नहीं समझ आती कि इधर से ही गए हैं तो इनको क्या हो गया है. And फिर luckily we all were educated abroad as well. So after my A-levels, I went to England. तो मैंने वहाँ पे कुछ साल गुजारे. My brothers went to the States. My sister is in Karachi. So we all moved out of Islamabad then for education as well. And उनके लिए एक especially when I was going, बाबा के लिए होता था कि not just, I think he wanted us to go, लेकिन वो होता है ना कि लोग क्या कहेंगे वाला फैक्टर. जाहिर है because उनका बैकग्राउंड एंड ऑल्सो लाइक काफ़ी लोगों के साथ ये होता है कि इवन इफ दे आर द फर्स्ट जनरेशन टू लीव द गाँव, लेकिन ना उनके बहन भाई भी गए होते हैं. एग्जैक्टली. आप लोगों का तो ये सीन है कि सिर्फ योर फादर मूव्ड और सारे उनके बहन भाई उधर ही पीछे ही रह गए. राइट. तो उनका ये था कि बाबा वॉज वेरी हेजिटेंट कि अच्छा इंग्लैंड जाना है, तो कभी कहते थे चली जाना, फिर कहते थे नहीं. इवन दो ही वेंट हिमसेल्फ, लेकिन ही वॉज वेरी 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 वो अबाउट इट. लेकिन फिर माय ग्रैंडफादर, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, हम सखाकोट बाबा कहते थे. तो बाबा ने एक दिन उनके सामने बोला कि पश्मीना इंग्लैंड जाना चाह रही है. एंड माय ग्रैंडफादर सेज के पढ़ने जा रही है, जाने दो.
And that was such a shock for my father, even though वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन he understood that. He used to say कि एक अनपढ़ आदमी की मिसाल एक अंधे आदमी की मिसाल है. You're blind. Basically, you don't understand anything. कोई insight नहीं है. हाँ. Yeah, so he wanted that for us. So that pushed him. And nice. I don't even know the things they have to hear. My mother and my father, आज दिन तक उनको होता है कि बाहर बेच के क्या तीर मार लिया, ये हो गया, वो हो गया, you know. But it was, I think, so important. But it also had such a different impact क्योंकि पहले इस्लामाबाद वाला पूरा सेटअप, फिर इंग्लैंड जाओ, फिर वापस आओ, then you're obviously a changed person. So it's been very difficult. हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा from Sakhakot to London की जो एक वो जर्नी है, बिल्कुल, there's a lot of difference, right? Like you said, बहुत interesting तुमने बोला कि class different बहुत महसूस हुआ होगा. How did you think that तुम्हें लाइक किस तरह फील होता था क्लास डिफरेंट अपने कज़न्स में और फैमिली में, या हाउ डिड यू थिंक कि तुम्हें इस तरह होता था कि वहाँ मैं जाऊँगी तो लाइक डिड दैट सॉर्ट ऑफ लोग क्या कहेंगे वाला जो कल्चर होता है, डिड दैट अफेक्ट यू इन एनी वे? It did and it did not. It did because जब आप जाते हो आपको पता होता है कि you come from this family, right? लेकिन you don't have anything in common with those people. So you sit with them, you have a conversation with them, you talk about a lot of different things with them. And कुछ चीज़ें होती हैं, like my sister, she's very stubborn. तो वो शुरू हो जाती है लड़ाई करने कि नहीं ये चीज़ इस तरह नहीं है. And we try to make her understand कि इन लोगों को शायद समझ नहीं आनी क्योंकि उनका ब्रॉटअप उस तरह नहीं है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि अगर यू आर बीइंग वेरी प्रोग्रेसिव अबाउट थिंग्स, इट्स फाइन इफ सम पीपल आर नॉट प्रोग्रेसिव अबाउट थिंग्स. दे हैव नॉट हैड दैट अपॉर्चुनिटी. वी हैव बीन लकी कि हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी थी. तो वो होता है. अब मेरे कजन्स में भी देयर इज अ मिक्स. कुछ लोग फिर पेशावर और इस्लामाबाद निकल आए थे पढ़ने, ऑब्वियसली इन लेटर स्टेजेस. उनको होता है, उनको समझ आ रही होती है चीज़ों की, लेकिन उनको भी ऑब्वियसली उस तरह वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. क्योंकि एक जनरेशन का फ़र्क है ना. तुम्हारे अब्बू ने किया, अब तुम्हारे कजिन्स ने किया, तो देयर इज अ डिफरेंस इन दैट जनरेशन. बाबा के सिबलिंग्स ने उस तरह का एक जंप नहीं लिया. उनके बच्चे अब आई एम रियली ग्लैड वो कर रहे हैं. एंड दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. My father tried as much as he could to educate his siblings and everyone in the village. They were not up for it? They were not up for it, basically. एक तो there was also, for the longest time, बाबा के गांव में लड़कियों का स्कूल एक certain class तक था. If I'm not mistaken, I think 8th class तक था. अच्छा. उसके बाद लड़कियां पढ़ नहीं सकती थी. शादी वगैरह हो जाती थी, या बस घर ही बैठ जाओ, नहीं करनी अगर किसी ने शादी, अगर कोई रिश्ता अच्छा नहीं आया, whatever. But उसके बाद तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी. अब लड़कियों को कौन लेके जाए दूसरे गांव उनको पढ़ाने, नो वन केयर्ड, वो वाला सीन था. एंड द मेन इन द फैमिली, उनका भी एक था, अच्छा भाई कहते हैं वी हैव दिस, वी हैव दैट. अच्छा, वी डोंट कम फ्रॉम वेरी लाइक माई डैड्स फैमिली, वी आर नॉट वेरी रिच पीछे से, तो वो लैंडलॉर्ड्स और वो वाली वाइब जो होती है वो नहीं थी. तो बट फिर भी वो मेंटालिटी थी. लाइक ऑन माई मदर्स साइड विद देयर मोर लाइक ज़मीनें एंड दिस एंड दैट. तो उनकी वो मेंटालिटी थी कि हम तो भाई लैंडलॉर्ड्स हैं, हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. या अगर है भी तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट. सो दैट्स हाउ थिंग्स वर for me growing up. अच्छा, अब इस सिनेरियो में what was your mother's role? अच्छा, so my mother, I think it's still very difficult for her, poor thing, because she has to manage her in-laws, her own family, us, then my dad's circle of friends, जो कि वो are from England, तो वो भी आके रह रहे होते हैं, and she has to play this superwoman, and you know उधर भी उन्हें करना होता है और इधर भी. and फिर obviously हम बच्चे भी, we keep changing. अब आप 4-5 साल बाहर गुजारो, वापस आओ, you've changed. So for her it's been very very challenging, but she also understands ke, you know, this is how life is. She wanted that change for everyone. I think for mothers जो है ना ये challenge होता है where they have to क्योंकि ना हमारी सोसाइटी में वैसे औरतों पे एक तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट का बर्डन जो है ना वो औरतों के ऊपर है. where they have to like अगर आपके हस्बैंड की भी फैमिली है ना, whatever your husband's doing, आपके ऊपर बात आती है कि have to do all of it. Yeah, unfortunately, but it's true. My father is so busy कि at times वो नहीं जा पाते फौतगियों पे, और but your mother has to show up. Yeah. And she also wants to. I think it's also in her nature. You've met her, she's so like socializing and stuff. तो it's in her nature. तो वो उनको करना पड़ता है और वो खुशी से करती हैं. She's वो तो होता है हमारे ख़ानदान में कि जो रिलेशनशिप चीज़ है, कोई दावत है, कुछ है,
गिफ्ट्स देने लेने कोई भी हो, वो चाहे आपके हस्बैंड की फैमिली है, बट यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. और अगर उसमें कोई इशू भी होता है तो वो बात जो है वो बीवी पे ही आती है. उसके लिए ये जोड़ा लिया था, इसके लिए ये लिया था. हमारा अभी तक वी हैव अ वेरी रस्म और रिवाज वाले ट्रेडिशंस इन आवर फैमिलीज. सो इट्स लाइक शादी पे आपने सास को भी जोड़ा देना है, बहनों को भी देना है, बहनों के ससुराल को भी देना है, इसको भी देना है, उसको भी देना है. एंड इट्स रियली क्रेजी. लाइक इट्स आई हैव टोल्ड माई मदर सो मेनी टाइम्स टू स्टॉप इट बिकॉज माई इन-लॉज आर लाइक क्या हो रहा है, इससे नहीं कर रहे हम लोग. और मामा लाइक नहीं, बस ये हमारे ट्रेडिशंस हैं और ये हम प्यार से करते हैं तो हमें करना पड़ता है. तो तुम्हारे अम्मी अब्बू दे डिडंट बिलोंग टू द सेम विलेज तो? No, it was an arranged marriage. Also the doing of my grandfather. अच्छा. वो बस गए, उन्होंने कहा है and he was very proud कि उनका एक बेटा है. जैसे ही उनके बाबा का पढ़ाई पूरी हुई है इंग्लैंड में, as soon as he found out कि he's done, my grandfather's like मैं लड़की देख रहा हूँ, ये उधर की एक अच्छी फैमिली की लड़की है. और वो गए, जब तक उन्होंने हाँ नहीं किया उधर बैठे रहे. मतलब उन्होंने कहा था कि बस यही है. So they waited and वो बस. अच्छा, थोड़ा सा और रिवाइंड करूंगी. हाउ डिड योर फादर एंड अप इन ग्लासगो? सो जाहिर है हिम टेकिंग दैट स्टेप एंड मूविंग आउट एंड डूइंग ऑल दिस, तो ये कैसे हुआ? सो बेसिकली अगर बाकी सिबलिंग्स के साथ नहीं हुआ. सो बेसिकली he was really smart, माशाल्लाह. he's very intelligent, he's very good at what he does. So वो शुरू से एजुकेशन में भी इसी तरह थे और उनको पता था. वो कहते थे कि वो आई नो लोग अपने पेरेंट्स की एग्जांपल्स देते हैं कि लाइट नहीं होती थी, हमारी जेन्युइनली लाइट नहीं होती थी, वहाँ पे बिजली थी ही नहीं. अभी तो गैस भी नहीं है, उस तरह का सीन है. सो वो जेन्युइनली उस तरह पढ़ते थे. देन ही अंडरस्टूड कि अच्छा इस तरह के और भी लोग हैं जो कि ये कर रहे हैं तो ये मैंने भी करना है. देन ही वाज आई थिंक अपने बोर्ड में जो 10th मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है उसमें फर्स्ट आए हैं, तो उन्हें था मैं पेशावर जाना है. सो देन ही हैड अ वेरी सपोर्टिव फैमिली एज वेल, जो कि खुद इतने पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनको समझ थी कि अच्छा इस बच्चे ने पढ़ना है तो हम इसके हेल्प करते हैं. हाँ, इट्स सॉर्ट ऑफ वर्थ इट, लाइक वो एकेडमिक है, उसमें टैलेंट है, सो दे पुश्ड एंड लेट हिम. तो उनको उन्होंने फिर वो ही वेंट टू पेशावर से वहाँ पे देन ही गॉट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज ओवर देयर. उसके बाद ही वेंट टू KMC. फिर KMC के बाद ही अंडरस्टूड कि अच्छा आई हैव टू अर्न मनी माई सेल्फ, इवन दो इट्स अ जॉइंट फैमिली. अभी तक वो सारी जॉइंट फैमिली में रहते हैं. सो माई डैड्स अंकल्स दे ऑल लिव इन द सेम, लाइक अपने अपने घर है लेकिन इट्स द सेम कंपाउंड, सेम एरिया. सो उन्होंने उनको ऑफर किया था कि हम ट्रैक्टर है हमारे पास, क्योंकि खेती बाड़ी का काम करते थे, सो वी कैन सेल दिस ऑफ. एंड बाबा सेड कि नहीं, वो सारी ज़िंदगी मेरे पे एक बर्डन रहेगा, इवन इफ़ आई पे इट ऑफ, कि यू नो दिस वाज देयर नेसेसिटी एंड दे सॉल्ड इट ऑफ फॉर मी. सो देन ही हैड अ जॉब विद द UN वज़ीरिस्तान में. वहाँ पे उन्होंने 2 साल काम किया है, वहाँ से उन्होंने पैसे जमा किए हैं और फिर उन्हीं पैसों पे उनकी तुम लाइफ स्टोरी सुनना, वो लोग किस तरह रहते थे लेकिन वो बहुत खुश होते थे. लाइक they're happy times, you know, even though they struggle so much, they're happy times. Good times होते हैं वो. हाँ. So he basically is a self-made man. Which is why he's always been very vocal about our education, and he's wanted this for us and for everyone in the village. So you felt like you belonged to Islamabad more than you did there. Yes, of course. So तुम्हारा going back would be more of a culture shock than, you know, right? Going back गाँव? हाँ. I've never lived there हमना. मतलब तुम ऐसा जाती तो विजिट तो करती हो ना? वैसे विजिट तो करती हूँ लेकिन I've never lived there उस तरह. So like उस दिन इमरान my husband, he went with me ईद पे and वहाँ पे he saw कि अच्छा there are cows and stuff, and मामा को कहता है ये ईद के लिए है. We laughed so much because we were like, you know, क्योंकि obviously उनकी वो पुरानी generations have been in the cities but they didn't understand that. So many things that he does which is very funny for us क्योंकि we completely understand the village, the culture and everything, but it's just that for an outsider it's something so new कि ये क्या है. Yeah. So उसके बाद you grew up in Islamabad, you didn't live anywhere, तुमने यहीं पे सारी schooling की. Yes. तो growing up in Islamabad कैसा था तुम्हारे लिए? So जब हम इस्लामाबाद में थे तब इस्लामाबाद में इतनी पठान फैमिलीज नहीं थी जितनी अब है. So for us it was लाइक किसी मार्केट में भी कोई पठान फैमिली नजर आ जाती है ना, मामा कहती थी पठान है जाके बात करते हैं. अब तो इट्स लिटरली लाइक इस्लामाबाद में तो देयर इज वे टू मेनी पठान नाउ. बहुत ज़्यादा है लेकिन तब हार्डली कोई होते थे. सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट इन स्कूल क्योंकि स्कूल में आई थिंक मेरी क्लास में मैं ही एक पठान थी. स्पेशली जब मैं अपनी गर्ल्स ब्रांच वाली साइड पे थी. एंड एट टाइम्स तो लोग मुझसे पूछते थे तो तुम पठान हो तो फिर ये आता है तो फिर पठान इस तरह होते हैं, वो जो स्टीरियोटाइपिकल चीज़ें. अच्छा ये भी था. इवन दो आई वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर
मतलब मैं कोई वीक किस तरह की हाँ, लड़की like थी. तुम्हारा you weren't of the submissive nature. No, I was very naughty and I was very शरारती in school. तो वो जब इस तरह के लोग बातें करते थे, उर्दू का एक्सेंट, ये इस तरह नहीं बोलते, ये इस तरह बोलते हैं, तो उन चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा होता था. अब तो यार people are so woke and everything is so different now. And that's why I tell my sister, you have it so much easier, you know. For us it was so different, and it was very common for people to say these weird things to you कि आप ये हो, आप पठान हो तो आप ये हो. And then I understood कि no, this is my strength. मैं पठान हूँ तो मैं I'm a good host. हाँ, proud होना चाहिए. You know, I have a lot of good qualities. I cannot just be like अच्छा उसने ये कह दिया कि whatever the stereotypical things are. Like what? Like पठानों की क्या stereotypes तुम्हें feel हुई के थे? पठानों की एक तो ये You'll have to cut this out. Like पठानों को ये कहते हैं कि लड़कों ने हाथ पकड़े होते हैं, तुम लोग के उसमें ये ज़्यादा होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं. और फिर औरतें घर से नहीं निकलती हैं और तुम लोग पढ़ते नहीं हो और तुमने इतना क्या करना है पढ़ के, तुमने शादी कर लेनी है. हाँ, basically the idea कि you were very backward. Yeah, basically, you know, and obviously it wasn't the kids' fault. उनके पेरेंट्स ने या उनके फैमिलीज़ में यही चलता होगा, उनको यही बताया गया होता होगा कि पठान इसी तरह होते हैं. तो फिर एक दो मेरी पठान फ्रेंड्स बनी, फिर हमें था कि अच्छा नहीं यार हम पठान पावर ऐसा कोई सीन नहीं Cute. है. So फिर वो उस हिसाब से like obviously there is a difference in language but it just means we know more languages, you know. So वो फिर चीज़ें आप बड़े होकर सीखते हो, लेकिन उस वक्त it feels very bad. आपके सेल्फ स्टीम पे बहुत बुरा वो इफेक्ट होता है जब आपकी उर्दू टीचर आपको पॉइंट आउट करती है क्लास में and you're like यार you know it's not my language, it's fine, I'm learning. And for me I learned it very later on in life. मतलब मैं 6-7 साल ज़िंदगी की उर्दू सीखी ही नहीं थी मुझे, because I didn't need it. Why would I need Urdu? मैं तो थी नहीं पाकिस्तान में और हम है तो पठान, so it was Pashto and English. Yeah, so when I came it was very difficult for me. तो अच्छा, उर्दू बहुत बाद में सीखी है. मैंने उर्दू बाद में सीखी. ठीक है. फिर इस्लामाबाद में you grew up, फिर तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें भेज दिया. हाँ, इस्लामाबाद में मैं इधर थी for like till A levels. So A levels में हम I changed A levels में few schools. That's where I met you, and to LGS as well. My parents wanted me to be doctors. So उनके जहन में ये था कि ये साइंसेस करो, और मैं साइंसेस करती हूँ. I wasn't good at it. And I've had the most toxic school ever. If anyone I know, all my friends who are probably watching this know what I'm talking about. They were toxic teachers. They were bad. They were just like discouraging and very discouraging. Very discouraging. मेरी एक टीचर थी, failure feel कराना कि you're not good enough for this. You're not good and you're not going to do this. They would make sure कि आपको, और मैं सोचता था अच्छा ठीक है, if I'm not going to do this, if I'm not good enough, मैं क्यों मेहनत करूँ, you know? Why should I waste my time on something I'm not good at? So I was made believe कि भाई तुम कर ही नहीं सकती हो, तुम मैथ्स में नहीं अच्छी हो, तुम मैथ्स नहीं कर सकती हो, तुम इसमें नहीं अच्छी, तुम ये नहीं कर सकती हो. मेरी सोशल स्टडीज़ की टीचर थी. I still remember her name and I still remember her face very clearly. And उन्होंने मुझे कहा था कि तुम फेल हो जाओगी, आप CIE एग्ज़ाम ना दो. And I was so disheartened. I was like, ये क्या हो रहा है, मतलब मैं फेल हो जाऊंगी. And I was very sad about that. लेकिन फिर I didn't fail. I got a B. It wasn't an A, लेकिन it was a very good B is really good. हाँ. मैं गई उनके पास और मैंने उनको बताया, मैंने कहा मेरा B आ गया है. And she said कि अच्छा, I knew it. I always knew you could do it. And I was like, no, you did not. No, you did not. तो वो इस तरह की टीचर्स होती थी. And then they would point out stupid things कि ये so we used to have sashes, वो हम नीचे पहनते थे. So apparently आप sash नीचे पहनी, you're a bad girl. तो oh my god, वो एक टीचर थी, उन्होंने लिटरली मेरे मुंह पे me and my friend Rabia, हम दोनों को the biggest eye roll. उन्होंने ये कहा था, should I tell your parents? And I was like, tell my parents what? हमने sash नीचे बांधी हुई है. Oh my god. So they were teachers like that, and we had to grow up with those people. But I mean, फिर आपको ये होता है कि everyone else is going through the same thing. And we found fun in that, and we found a silver lining in that. और हम उसमें भी उनको बहुत तंग करते थे. मैं ये नहीं कह रही हमने तंग नहीं किया उन्हें, हमने बहुत तंग किया अपने टीचर्स को. But it's just that you're growing up. I feel like teachers should understand that kids want to learn. You just need to be supportive. Basically, I think it's teachers की responsibility है to provide a very positive and conducive environment कि बच्चे उसमें thrive करें rather than कि एक मतलब उनकी self esteem damage तो ना करें ना आप. बिल्कुल. So for me it was a very toxic environment. खैर then I changed my school in A levels.
मैं आई हूँ फिर LGS. मैं जब LGS आई हूँ तो आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस और नॉट, वी डिड द फर्स्ट प्रॉपर वेलकम ऑफ द स्कूल. जो हमारी वेलकम पार्टी थी, वी हैड वेंडर्स फ्रॉम आउटसाइड एंड दिस एंड दैट एंड वी डिड अ वेरी नाइस क्यूट सा. हाँ, हमने मिलकर ही किया था. बिल्कुल. तो we would go, your mom was the principal तब, तो हम उनके पास जाके सब चीज़ें डिस्कस कर रहे होते थे. तो खैर आई डिसाइडेड कि मैंने तुम A2 में आई थी ना? A2 में आई थी. तो मैंने डिसाइड किया था कि मैंने 1 साल में दोनों सब्जेक्ट्स करने हैं. एंड शी टोल्ड माई पेरेंट्स कि एक तो आप इससे साइंसेस क्यों करा रहे हैं, शी इज सो क्रिएटिव, यू नो, आप साइंसेस ना कराएं इससे, लेट यू डू समथिंग एल्स दैट शी वांट्स टू डू. एंड माई पेरेंट्स लाइक नहीं, इसको कोई समझ नहीं है, बिकॉज उनको था कि बस साइंसेस ही करे, डॉक्टर बनना है ना, बनना है. एंड आई ऑल्सो फील लाइक अगर उन्हें शायद अगर मुझे बचपन से ये ना पता होता कि मैंने डॉक्टर बनना है, मे बी मैं डॉक्टर बन भी जाती. बट इट्स जस्ट बिकॉज वो आपको होता है मैं क्यों करूँगी, यू नो. एंड दैट्स ऑल्सो बिकॉज आई हैड सच बैड टीचर्स हु मेड मी बिलीव कि आई एम नॉट good enough for this. You know? So when I knew कि I'm not good enough, I was like मैं क्यों टाइम ज़ाया करूँ इस पे. सो खैर उसके बाद A levels जब मैंने कर लिया, कर आके ना साइंसेस कर लिया, गॉट रियली ऑफुल ग्रेड्स, लेकिन आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस एनीमोर. एंड माय पेरेंट्स वर लाइक ठीक है, तुमने क्या करना है वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क. मुझे नहीं पता था मैंने क्या करना है. I also think it's so much pressure on kids. You're 17, 18. It's not fair. You know? It's not fair. You have to make a पूरी ज़िंदगी का decision उसी वक्त. And पता है क्या, मैंने पिछली पॉडकास्ट में बोला था, दोबारा बोल देती हूँ कि लाइक मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से लेके अप टिल A levels, ठीक है, अप टू यूनिवर्सिटी एक्चुअली एट द एंड, ठीक है, आपको कोई टाइम और स्पेस नहीं दी जाता टू एक्चुअली एक्सप्लोर थिंग्स. एग्जैक्टली. जिससे आप जाके फिगर आउट करो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, व्हाट यू वांट टू डू. तो वो जो गैप ईयर होता है ना, वो एक नेसेसिटी होनी चाहिए कि जब क्या. हाँ, A levels के बाद आपको जो छुट्टी मिल रहा है कि आप बैठ के सोचो भाई मैंने क्या करना है, फिर उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी में जाओ. It's insane. US में इतना अच्छा सिस्टम है उनका कि 2 साल you don't have to decide what you have to do. So आपके 2 साल पूरे होते हैं, उसके बाद you choose your major. Yeah. यहाँ पे तो आपने even UK का भी ये सिस्टम है कि जाते साथ ही आपको पता होता है क्या करना है. अब my brother-in-law, he got done with his LLB and now he's like, I don't like this, I don't want to do this. So he's taking a year off to figure out what he wants to do. And we're supporting him in that. कि it's fine, you know, because I understand that. Yeah, I really think that, I don't know, अगर ये किसी तरह हो जाए, मुझे लगता है कि A levels के बाद gap year should be normalized and people should have time to really figure out what they want to do. Or they should have such opportunities where kids can do other things and, you know, I don't know, part-time internships or this and that and stuff like that, जहाँ उनको समझ तो आए कि क्या करना है. तो वो एक चीज़. तो फिर तुम्हें समझ नहीं आ रही थी उस वक्त? मुझे समझ नहीं आ रही थी उस वक्त कि मैंने क्या करना है. क्योंकि I think suddenly your whole life you've been told तुमने डॉक्टर बनना है and then you're like नहीं बनना, तो there's this huge gap in your mind के suddenly which is created by the way कि मैं क्या करूँ. So I was very confused and like मतलब टाइम भी नहीं था. एक तो पता नहीं इंग्लैंड का मैंने डिसाइड कर लिया इसलिए क्या वाज लाइक, यू नो, आई वाज बोर्न देयर, आई हैव बीन देयर. वो पेरेंट्स के लिए एक सेफ स्पेस है, उनको पता है कि यू नो मुझे इजाज़त की इजाज़त मिल जाएगी तो मैं इंग्लैंड का बोल देती हूँ. अब वो मैंने किया. उसके बाद बिजनेस केम अलोंग कि अच्छा आई एम गोइंग टू डू बिजनेस इसलिए क्योंकि आई हैव ऑलवेज बिन द सॉर्ट ऑफ पर्सन के तो मुझे कुछ भी दोगे ना, मुझे होगा कि यार ये इसको बेच किस तरह सकते हैं. मुझे एट टाइम्स व्हेन आई हैव नीडेड मनी ना, बचपन में किसी ने गिफ्ट कर दी कोई वॉच, बेचती जाके, यू नो, थिंग्स लाइक दैट. जस्ट सो आई वाज लाइक अच्छा इफ आई हैव दैट इन मी मे बी आई विल बी गुड एट दिस. दैट्स व्हाट आई डिड देन. फिर मैं इंग्लैंड गई हूँ. आई वाज 18 एंड माई पेरेंट्स वर देयर विद मी. उन्होंने मुझे ड्रॉप किया है. 1 महीना इट वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग, कुछ मुझे समझ नहीं आ रही थी. 1 महीने बाद उन्हें चले जाना था. वो जा रहे हैं नाउ, देर लिविंग, माई फादर इज एट द एयरपोर्ट, ही इज़ गोइंग एंड आई एम क्राइंग एंड आई एम लाइक मुझे ले जाए वापस. मैंने नहीं कर सकती. इवन दो आई फॉट सो हार्ड फॉर इट बट इट वॉज सो ओवरवेलमिंग कि आई वॉज लाइक आई कांट डू इट. एंड यू नो ऑब्वियसली ही गॉट इमोशनल एज वेल एंड ही इज़ लाइक नो बच्चे यू कैन डू दिस एंड दे लेफ्ट मी देयर. फिर उधर के जो 3-4 साल थे वो आई फील लाइक दे चेंज्ड मी. ऑफ कोर्स. लाइक दैट वाज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी बिकॉज वरना मैं वही इस्लामाबाद की एक बच्ची होती जो एक छोटे से बबल में हमेशा थी. इस्लामाबाद वैसे ही बहुत छोटा बबल है. और आप उसी में फंस जाते हो. वही सेम सर्कल होते हैं, वही सेम लोग होते हैं, वही मेंटालिटी होती है लोगों की. तो दैट वाज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी कि मैं गई हूँ और मैंने देखा है कि यार हर तरह के लोग आते हैं वहाँ पढ़ने. डाइवर्सिटी, यू नो, एंड यू अंडरस्टैंड के एक तो यू नॉट ओनली अंडरस्टैंड योर फैमिली वैल्यूज एंड स्टफ बट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यार लोगों के साथ
लोग किन किन सिचुएशंस में रह रहे हैं यहाँ पे आके, जस्ट टू यू नो, एंड यू हाउ ब्लेस्ड यू आर. सो आप उस एस्पेक्ट से चीज़ों को देखते हो, एंड देन यू वर्क हार्ड एज वेल. एंड ऑल्सो वहाँ पे व्हाट आई रियलाइज्ड, जो बेसिकली चीज़ वो होती है ये कि दे डोंट फोर्स यू कि आपने क्लास में आना है. दे डोंट केयर आप क्लास में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, इट्स नॉट देयर हेडेक. ठीक है, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पता होती है जब आपके पेरेंट्स पैसे लगा रहे हैं उस चीज़ पे, जब आप इतना दूर घर से रह रहे हो, व्हेन यू सी अदर्स अराउंड यू. ठीक है, आपको होता है कि अच्छा यार ये बंदी जाके इतनी देर पढ़ सकती है, मैं क्यों नहीं पढ़ सकती, यू नो. सो फिर आप उस रेस में लग जाते हो. एंड उस चीज़ को फिर 3 साल मैंने वो किए. उधर भी your friends become your family. Of course, when you live away in the hostel life, your friends are your family. So those वो friendships भी कुछ और ही होती हैं. They're forever friendships. I feel like even if I don't talk to this friend 10 साल भी ना, I meet and I know it's going to be something else. Like it's the same thing. क्योंकि you've seen the worst of each other and you've seen the best of each other. वो वाला scene होता है. So वो I made very good friends over there. Mostly from Pakistan, because I felt more comfortable with those people. But in my masters, I made a lot of Indian friends. And आज ही मैं बता रही थी किसी को कि it was so sad when we were leaving, क्योंकि we knew we're not going to see each other again, you know. लेकिन they thought कि हम मिलेंगे फिर से, and मैं तो बता रही थी ऐसा नहीं होने वाला. It's going to be very difficult, you know. With the way this country is and with the way things are going, and you know वो जो सारा सीन है उसमें आप ये तो नहीं सोच सकते हो. कहते नहीं हम तुम्हारी शादी पे आएंगे ना, लाइक मेरी शादी पे तुम लोग नहीं आओगे मुझे पता है. लेकिन फिर भी तो वो एक था, वो एक बॉन्ड होता है, आप खाना साथ खाते हो, हर चीज़ साथ करते हो. आई हैड हिंदू फ्रेंड, जो एक मेरी हिंदू फ्रेंड थी उसने हमारे साथ रोज़ा रखा. शी इज़ लाइक आई वांट टू सी कि तुम ये रोज़ा किस लिए होता है. शी फास्टेड विद अस एंड वो दे वर सो नाइस. वो हमारी हेल्प करते थे सहरी में, इफ्तारी में, यू नो, कि क्योंकि एक रमज़ान हमारा उधर आया था. तो वो it was a very very nice bond, and honestly changed me so much as a person. I grew closer to my mother, I grew closer to my sister. Just sometimes आपको वो distance चाहिए होता है to actually become closer. हाँ, जब बड़े हो रहे होते हो you're so confused about so many things, आपको समझ नहीं आ रही होती है, and being overwhelmed with a lot of things, and फैमिली की चीज़ें होती हैं, और फिर दोस्तों का एक वो होता है. और मेरे साथ ये होता है बिफोर गोइंग. सो जो मेरा स्कूल का फ्रेंड्स का ग्रुप था उसमें थोड़ा इश्यूज शुरू हो गए. एंड आई रियलाइज्ड कि दे वर नॉट लाइक आई डोंट नो द राइट पीपल फॉर मी. एंड अब ये होता है कि वो इश्यूज ख़त्म हो गए, लेकिन वी मीट एंड आई अंडरस्टैंड कि यार we're not the same people as we were. So I don't connect with them on that level. So वो formality के लिए होता है, मैं मिल लेती हूँ उनसे, लेकिन मुझे पता है कि we're very different people now, all of us. तो हम क्योंकि स्कूल के फ्रेंड्स, बचपन के दोस्त हैं, उस चक्कर में हम लोग मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं, बहुत रेयरली होता है. I don't know where we're going with this. No, it's fine. It's fine. It's absolutely fine. मुझे बताओ कि you learned a lot, और इंग्लैंड जाके तुम्हारा बहुत एक्सपोजर हुआ. सो व्हाट डू यू थिंक, वाई डू यू थिंक दैट इज़? ठीक है, मूविंग अवे इंडिपेंडेंस एक चीज़ होती है, बट वहाँ की लाइफ के ऐसे क्या फैक्टर्स थे, एंड व्हाट स्पेसिफिक चेंजेस डू यू थिंक दैट केम इनटू यू? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड हैव अ स्पेसिफिक बजट, ठीक है, जिसमें मैंने अपना महीना गुजारना था. अब अगर मुझे पता था कि इस महीने हमने कोई ट्रिप मारना है, तो वो बाकी 2 हफ्ते 3 हफ्ते मैं थोड़े टाइट गुजारती थी. उस बेसिकली मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि आपको इधर नहीं इफ़ यू कीप लिविंग विद योर फैमिली तो नहीं हो सकता, वो कभी नहीं हो सकती. ठीक है. सेकेंडली आपको आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ टू लिव आउट ऑन, क्योंकि कंफर्ट जोन आपका ना हट जाता है आपसे. ठीक है. सो एंड स्पेशली हम इस्लामाबाद के बच्चे वी सो स्पॉइल्ड कि हमें एक कॉल करनी होती है, ये काम हो जाता है, एक कॉल करते हैं तो ये मसला. बिकॉज इस्लामाबाद की लाइफ ऐसे इज वेरी कन्वीनियंट. इट्स अ वेरी कन्वीनियंट लाइफ एंड वेरी वेल कनेक्टेड. You won't know someone in a school, in a hospital, in the police station, everywhere. और वैसे भी क्योंकि लाइफस्टाइल यहाँ का ऐसा है कि इवन कराची लाहौर की जो खप्पे हैं ना, वो भी यहाँ पे नहीं है. Exactly. कुछ भी नहीं. It's too convenient. अब तो फिर थोड़ा chaotic हो गया, लेकिन पहले तो उस टाइम पे तो बहुत ही chilled out था. तो वो सारी चीज़ें खुद करनी पड़ी, बिल्स खुद देने पड़े, सफाइयाँ खुद करनी पड़ी, खाने खुद बनाने पड़े, यू नो. फिर
going through friendships, मतलब making those friendships and also losing a lot of friends उसी time span में, तो वो आपको realize होता है कि किसी के साथ रहना कितना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ लोग के साथ रहना कितना आसान है. You know, it's finding those people, all of that. And I really think there's a lot of things that you discover about yourself. Yes, for क्योंकि sure. अगर आपने कोई चीज़ experience नहीं की तो आपको पता कैसे चलेगा कि how you react to do things or what they make you, right? Basically. तो self discovery बहुत ज़्यादा हो जाती है. हाँ. तो वो चीज़ें अब अकेले में मुझे नहीं लगता था मैं कभी ट्रैवल कर सकती हूँ, कहीं मैं जा सकती हूँ. और मैं गई हूँ, फिर मैं आई वेंट टू डिफरेंट कंट्रीज. उधर से जितना कन्वीनियंट होता था, यूरोप बहुत कन्वीनियंट होता था. मतलब इंग्लैंड में बैठे हैं, यूरोप तो जाना चाहिए. तो यू नो वो चीज़ें आपको वो बहुत मुश्किल लगती हैं शुरू में करना, लेकिन वो आप अकेले रह के ये चीज़ें सीखते हो. बेशक पाकिस्तान के अंदर अकेले रहो, लेकिन रहो. That's what I tell everyone. Just go out of this shell, go out of this bubble, because वरना you'll be stuck here all your life. And it's on loop. It's वही same mentality. क्या पहनना है, क्या कर रही है, क्या ये है, क्या वो है. You know. So you grow out of that. There is more to this world and this life than all of this. करो gossip, खैर है, लेकिन you know don't make that your life basically. अच्छा. So जब तुम वापस आई हो, what was so you went, things changed. I know one of the other things that happened was कि when you came back, अच्छा, so even I know this, even though मैं बाहर नहीं गई पढ़ने के लिए, but I went to Lahore to study. तो मैंने भी अपनी फैमिली से टाइम गुजारा. वो एक आपकी बहुत लाइफ डिफरेंट होती है, and something that your parents and your friends here and family here, they haven't experienced, they don't know, like जितना भी know कर ले, they don't know what their life is like, right? और आप बहुत चेंज हो जाते हो, और फिर जब आप वापस आते हो, they don't know who you are anymore, they don't know how you live. तो एक वो चेंज आता है जो कि बहुत सीरियसली एक इंसान को फील होता है. एंड आई नो दैट यू वेंट थ्रू दैट इज वेल. तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करो कि वो कैसा था इतनी इंडिपेंडेंस के बाद वापस घर में आना. हाउ डिड योर पेरेंट्स एंड फैमिली टेक इट? व्हाट वर देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ यू? व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ देम? एंड यू नो. अच्छा, सो व्हेन आई केम बैक, all my siblings were out of the country as well. So सिर्फ मेरी छोटी बहन उन्होंने में A-levels करी थी, एंड उसकी ऑब्वियसली वो स्कूल की रिस्ट्रिक्शंस होती थी. ठीक है. तो मुझे लग रहा था मैं बाहर से होकर आई हूँ, मैं अकेले रह कर आई हूँ, मेरे लिए सब कुछ उसी तरह होगा. बट ऑब्वियसली इट वाजंट लाइक दैट. सो वो वापस आना, उस चीज़ में एडजस्ट होना, वो इट वाज वेरी डिफिकल्ट. ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट रिश्ता कल्चर. बस बेटा पढ़ लिया, मास्टर्स भी कर लिया, अब तो वो तो गया. तो वो ये होता था कि अच्छा बच्चे मिल तो लो ना, बहुत अच्छे लोग हैं तो मिल तो लो, वो वाला चक्कर होता था. तो खैर मैं मिल लेती थी. ऑब्वियसली कोई फैमिली फ्रेंड, कोई ये कोई वो, बहुत से लोग अच्छे भी होते थे, बहुत से लोग अजीब भी होते थे. फिर उस चीज़ को आपने उस लाइक माई फादर यूज्ड टू से कि यहाँ पे रिश्ते इसी तरह होते हैं, यू नो. सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि ये एक कल्चर का पार्ट है, मिलना मिलाना जज करना. लेकिन मुझे वो जो चीज़ नहीं समझ आ रही होती थी कि एक तो इफ़ यू लाइक मी तो यू लाइक मी, आपको कहीं से मेरी पिक्चर मिली है या आपने कहीं मुझे देखा है इसीलिए आपको मैं पसंद हूँ ना, तो फिर आके फिर से पूरा शो मारने की क्या ज़रूरत है. तो मुझे वो चीज़ बड़ी अनॉय करती थी. शो मारना लाइक व्हाट? क्या मतलब? यार लाइक शो मारना इन द सेंस आपने जाके उनके पास बैठना है, अच्छा आती है, अम्मी पे एक प्रेशर होता है कि रिश्ते वाले आए हुए हैं या जो भी, यू नो. तो वो चीज़, बट I've still had it very easy, alhamdulillah. I know people who've had it way worse, and I know people who still go through it, which is why अभी मेरे भाई का रिश्ता हो रहा है, and my both like me and my sister, हम मामा को बोलते हैं कि आपने जब तक लड़की कोई और नहीं देखी आपने नहीं जाना उनके घर. मामा कहती मैं कहाँ देखूँ लड़कियाँ, and we're like so strict about it because we're like, you know, we understand that कि अगर आप जाते हो किसी के घर and then you don't like the girl, and it's very awkward for them as well, and for the girl as well. वो एक समझ भी आ जाता है, वो बुरा भी बहुत फील होता है. हाँ. तो you know आपने वो चीज़ नहीं करनी है, लेकिन वो चीज़ नहीं करनी है तो फिर किस तरह करना है, वो वाला सीन होता है. हाँ. एक तो चलो इफ़ यू लाइक समवन, बट इफ़ यू डोंट लाइक समवन तो हाउ डू यू गो अबाउट थिंग्स. पता है मेरी दादी ने क्या किया था मेरी अम्मी के साथ? मेरी अम्मी एक स्कूल में पढ़ाती थी. अच्छा. तो मेरी दादी जो है वो मेरी अम्मी के पास गई और उन्होंने कहा कि मैंने किसी का एडमिशन कराना है, तो जस्ट टू सी व्हाट शी इज़ लाइक, एंड वो ताकि वो चीज़ ही ना हो. एक तो जस्ट टू सी हर इन हर नेचुरल एलिमेंट एंड व्हाट शी इज़ लाइक, रादर देन कि रिश्ता लेके जाओ और फिर पसंद ना आए. तो शी वाज लाइक नहीं पसंद आएगी तो बात उधर ही ख़त्म हो जाएगी. हाँ. तो एटलीस्ट
शी अंडरस्टूड दैट ना, इतनी पुरानी ज़माने की औरत थी, कुछ चीज़ हमारे बड़े बड़े अच्छी तरह करते थे. हाँ, लाइक उन्होंने किसी ने रेकमेंड किया था तो शी सेड ठीक है, आई जस्ट गो टू हर स्कूल एंड स्पीक टू हर लाइक पेरेंट ऑफ समवन. हाँ हाँ, उस तरह की. लेकिन वो परफेक्ट सिनेरियो था ना स्कूल का, सारी लड़कियों को नहीं होता. ट्रू. तो वो वाला सीन होता है. लेकिन उसमें यही है कि you have to live with it. I think these are things which is going to take a lot of time. And they're a very strong part of our culture. Yeah, strong part of our culture. So I feel like this is not even going to change with the next generation, maybe the generation after that. I hope it changes. I hope it changes by the time, our kids are old. मतलब यार देखो, arranged marriage in itself उसमें कोई problem नहीं है. Of course not. लेकिन उसको कराना किस तरह है, that's a very difficult, problematic issue. Recently, a family friend of mine went through something similar कि लड़का wasn't here, so वो बाद में बात ख़त्म हो गई. And she's very sad about that. लेकिन अगर वो लड़का यहाँ होता और वो मिल लेते तो ये प्रॉब्लम होती ना, क्योंकि उनको देख के मिल के समझ आ जाती कि we're not compatible या जो भी but they went through the whole process. And it's sad, but it's the reality of the society. और वो बेचारी उसको ब्रेक नहीं लेने दे रहे हैं. भाई दूसरी शादी अब by दूसरी शादी I mean दोबारा start the process again. Start the process all over again. So it's like that. It should change. I don't know how it's going to change, but I hope maybe we can bring the change थोड़ा बहुत. But I think it's going to be evolutionary. आप इसे कुछ कर नहीं सकते. Through generations you take better steps and better steps, because now we know better and our kids will know better. ये गलती हुई है. I'm sure our parents did a better job than their parents did. So hopefully we're going to do a better job, and then it's eventually going to change. And eventually going to be better. Be better. And then how did you end up getting married? So हाँ, बस हमारा ये था कि we knew each other and the families knew each other, और बस फिर it was eventually it felt like ठीक है, this is fine. It felt like the right step to take and the right place, and alhamdulillah for such supportive in-laws and such nice people. I think रिक्वायरमेंट होती है ना कि एक हस्बैंड अच्छा होना चाहिए, लेकिन आई फील लाइक हमारी सोसाइटी में इन-लॉज अच्छे होने चाहिए, स्पेशली इफ यू आर लिविंग विद देम. क्योंकि आई नो फ्रेंड्स जिनके नहीं हैं अच्छे इन-लॉज, और वो कितना सफ़र करते हैं, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, एंड वी टेक ऑल दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड. लेकिन जब आपके एक सपोर्ट सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होता है ना, सो यू हैव कॉन्फिडेंस टू डू थिंग्स दैट यू वुडंट अदरवाइज. बट अगर आपके इस तरह के लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो कह रहे हैं ये क्यों कर रही हो, ये क्यों पहन रही हो, बहुत नोक टोक है, हाँ, तो वो मुश्किल हो जाता है. एंड आई हैव सीन इट अराउंड, एंड मुझे पता है कि फ्रेंड्स अराउंड अस जो कि करना पड़ता है उनको कितनी मुश्किल से करना पड़ता है. वी नो. सो वो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट इट वर्क्स आउट. लेकिन वही होता है ना कि दूर से चीज़ बहुत शाइनी लगती है लोगों को. सो एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह वाज गोइंग परफेक्टली फाइन फॉर मी. And I had a pregnancy last year, and full term पे I lost my baby. So 39 weeks आप pregnant or you lose your baby, it literally shatters your world. Yeah. So वो चीज़ आपको वही मैं कहती हूँ कि शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन also I don't know, नज़र भी होती है. A lot of things take part in all of this. Yeah, things that have to happen. Yeah, क्योंकि my father is a doctor and he's a very well-known doctor in the country. So I had the best medical care there is. So for me to go through something like that was a shock to everyone around me as well, कि ये तो एक डॉक्टर की बेटी है, और टॉप डॉक्टर्स इसके डॉक्टर्स जो कि केसेस नहीं ले रहे थे वो मेरे केसेस ले रहे थे, बट वो जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है वो अल्लाह की मर्ज़ी होती है. So the past 6-7 months for me have been literally every other week I'm thinking, how could I have done things differently, But I also understand कि ये अल्लाह की मर्ज़ी थी. This is nothing I could have done to, to protect my baby or anything like that. मतलब मुझे लोग फिर वो जो प्रोसेस होता है ना, उस चीज़ से गुजर के फिर जो लोग बातें करते हैं ना, that I think people need to be a little careful about. Okay, so that's a very important thing. Can you elaborate on that? Because I feel like people don't even know, right? Yeah. So how do you think that people could have dealt with this more sensitively? और मैं बहुत एक genuinely ये सवाल पूछूंगी now that we're sitting on the podcast and discussing it. Being a very close friend of yours and seeing you witness it, it was also very difficult for me to know कि अच्छा क्या मैंने कहना है, क्या करना है, how to be there for you, right? And how, what to say, what not to say. It's वो. So,
यार honestly initially it's a shock for everyone around you, for your family, for your husband's family, for the couple itself, ठीक है. लेकिन फिर एक टाइम आता है जब आप उस शॉक से निकल रहे होते हो, लेकिन people try to drag you down and try to drag you back into it, ठीक है. So I know कि when people were there and they wanted to listen when I wanted to talk, I liked that. But when people forced me to talk about it, I would still talk, क्योंकि मैं ट्रॉमा में थी, मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मैं उस चीज़ के बारे में बात करती थी. लेकिन I shouldn't have, like, मतलब I started therapy after that, ठीक है. तो उसमें my therapist told me कि you're supposed to feel the story. आप इस तरह blah 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 करके अगर आप एक नरेशन कर रहे हो तो वो ट्रॉमा आपके अंदर स्टोर हो रहा है. अच्छा, so expressing it doesn't actually. No, if you do it properly, ठीक है, if you feel everything, if you're just doing it A to Z just for the sake of it, so it's doing more harm than good. So but I would have to do that, and I was on auto. कोई आता था मैं शुरू हो जाती थी, मैं स्कैन के लिए गई, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, you know. And I think कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगी थी लोगों की वो ये थी कि एक तो यू ऑनेस्टली अंडरस्टैंड कि हु मीन्स व्हाट टू यू व्हेन यू गो थ्रू अ लॉस, ठीक है. आई हैव हैड फ्रेंड्स जिनसे मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन दे वर देयर फॉर मी एवरी सिंगल डे फॉर अ मंथ. लाइक आई हैड फ्रेंड्स कमिंग ओवर, एक महीना मेरी मामा से पूछो, हर लाइक रोज़ कोई ना कोई आ रहा होता था. एंड these weren't those people जो कि formality के लिए आए हुए हैं कि हाज़री लगानी है. These were people who genuinely cared, ठीक है. And it made me realize कि मुझे नहीं पता था कि these people cared that much for me. लेकिन it helps you understand वो, तो वो बहुत अच्छा लगता है आपको. I still appreciate that. I still appreciate those friends. You know, they'll always be close to me. And but जो लोग आते हैं और जो आपको कहते हैं कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तुम इधर. अच्छा, सो आई चोज़ नॉट टू गो टू माई फादर्स हॉस्पिटल. माई फादर डजंट ओन इट, लेकिन ही वर्क्स देयर. तो मुझे ये था कि मैंने उधर नहीं जाना. लोग मुझे कहते थे उधर क्यों नहीं गई, और ठीक है. सो बेसिकली आस्किंग यू क्वेश्चंस दैट पुट रिग्रेट्स इनटू योर माइंड, एंड दैट्स द लास्ट थिंग वेयर पीपल शुड बी मेकिंग यू फील लाइक इसमें तुम्हारी कोई कसूर है. बेसिकली अगर वो मुझे ये मेरे से इस तरह बात कर रहे हैं कि जिस तरह इट इज़ माई फॉल्ट और इट्स समथिंग आई डिड, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट वाली चीज़, ठीक है. तो वो तो ऑब्वियसली पर्सन गोइंग थ्रू दैट ट्रॉमा, उनको तो वैसी वो चीज़ हो रही होगी. You don't need to tell them that. You don't need to keep telling them कि तुम बच्चे शफा क्यों नहीं गई, तुम बच्चे इधर क्यों नहीं गई, तुमने ये क्यों नहीं किया, you know. और लाइक 39 वीक्स तक प्रेगनेंसी क्यों लेके गई थी, तुमने ये कर रही थी, सी सेक्शन क्यों हुआ फिर. So things that were not in my control. Yeah, and just intrusive questions that are not helping anyone, and it's not like having the discussion, you know, can change the outcome now. No, of course it cannot. Of course it cannot. ठीक है. खैर उस time पे I started therapy then, and that was my next question. So I started therapy, and what do you have to say about it? I don't know. Maybe I've heard that some therapists cannot be like, you know, they are not good and आपको अच्छा है उसका नहीं पड़ता effect. लेकिन my therapist was really good, is really good. I'm still going to therapy, and I'm so proud of that. I'm so proud that I took that step. It's a little investment that you make on your mental health, ठीक है. And it can have such a big impact. Yeah, it can impact your whole life. Like, we spend a lot of money on lawn ke jode and this and that, but if you spend that same amount of money investing in your mental health, it's a game changer for your entire life. Exactly. And honestly, Pashmeena, when you made this decision, I think I told you as well, because I was so proud that this is the approach that you're taking, because immediately you were like, you know, I'm going to start therapy because I don't want this incident to define the rest of your life and affect all your decisions without resolving that grief, feeling that grief. You know, I mean, I'm sure this is going to stay with me. Of course, but you have to grief se deal bhi to karna hota hai na. Grief to wo to of course it's going to stay. So that really helped, and it's not because they tell you what to do. It's because, you know, they tell you how to, मतलब दे शो यू द वे कि इस तरह आप डील कर सकते हो विद दिस ग्रीफ, दिस अप्रोच. आप ये करना है, आप नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा. यू नो, वो कभी ये नहीं बताते आपको कि अब क्या हुआ, स्टोरी सुनाए हमें, उस तरह का कोई सीन नहीं होता है.
लेकिन it's really helpful and I recommend it to everyone, even people who have not been through loss or trauma. Everybody needs therapy. Everybody needs therapy. Yes, you know. Yes. आपकी anxiety कम हो जाती है, आप बहुत चीज़ों पे question उस तरह नहीं करते हो. So therapy really helps. Did you have support around you to take therapy? Yes and no. Yes, because एक थेरेपी के साथ छोटा सा स्टिग्मा अटैच्ड है कि आपको आपने कोई बहुत ही सिवियर कोई इलनेस है, मेंटल इलनेस है या कोई बहुत ही बड़ा कुछ, मतलब आई डोंट नो किस उस पर, लेकिन लोगों को ये लगता है कि आपको इस इन पर्टिकुलर सिनेरियोज में, और लोग फिर पागलों की चीज़ एंड स्टफ लाइक दैट वो था. आई हैड फैमिली अराउंड मी हु टोल्ड मी के ज़रूरत है, आर यू श्योर यू नीड इट, यू नो, बट देन आई ऑल्सो हैड सपोर्ट अराउंड मी जिनको समझ थी कि अगर ये कह रही है कि उसको इस चीज़ की ज़रूरत है तो लेट हर डू इट. एंड आई थिंक आई टुक द राइट स्टेप एट द राइट टाइम. इट वॉज टू सून. ये भी लोग कहते हैं कि आप इतना जल्दी नहीं करते हो. सो 2 weeks into it, you started therapy. I started therapy. मैंने कहा यार करना है. But पता है क्या, I think that was smart. I'll say why. Some people might say too soon. लेकिन पता है क्या, जब you don't take that step, और जब आपको लगता है कि you're dealing, और फिर आपको लगता है मैंने डील कर लिया, अब मुझे क्या ज़रूरत है, but actually you don't. Until you go through that therapy session, you haven't really had that resolve. और वो आपको लगता है, और आपको तो यार इतना टाइम तो गुजर गया, अब क्या पॉइंट है, क्या ज़रूरत है, एंड यूर पास्ट एंड यू ऑल्सो अफ्रेड कि अच्छा अब मैं थेरेपी स्टार्ट करूँगी, मैं फिर उसमें घुस जाऊँ. तो गोइंग बैक इज़ वेरी हार्ड. सो आई थिंक द सूनर इज़ द बेटर, यू नो. I guess. It worked for me. No, speaking from someone who's suffered a loss. ठीक है. Like मुझे अब होता है कि यार अब मैं अभी थेरेपी सेशन शुरू करूँगी ना, मुझे पता है आई नीड इट फॉर दैट लॉस इन माई लाइफ, लेकिन अब मैं वापस जाऊँगी तो मैं how do I go through all that again? That's not how it is now. I know, but that's what I'm saying कि अगर आप ना करो तो फिर वो आप उस fear में चले जाते हो. It's not like they tell you कि आपके फलां का क्या हुआ था, उसका ये हुआ था. It's not. It's basically you talk and then you, whenever you're comfortable, you're going to talk about that incident. I talked about it 7 weeks into my session. उससे पहले बात ही नहीं की. उससे पहले हमने इस बारे में बात ही नहीं की कि I went through loss. Like he knew that I've been through loss. He figured it out. He knew कि अच्छा इस वजह से है. Yeah. But उससे पहले हमने वो like the approach to his approach at least was very good. Was very good. Yeah. So that's nice. Yes. अच्छा, एक एस्पेक्ट में डिस्कस करना चाहती हूँ, इफ़ यू वांट. ठीक है, तुमने अपने बेबी के लॉस की बात की. उस पॉइंट पे आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल मिस आउट और डोंट टॉक अबाउट द स्पाउस और द पार्टनर, या उनकी क्या सिचुएशन होती है. सो कैन यू शेड सम लाइट ऑन दैट कि एक हस्बैंड के एक फादर, what is that experience like? Obviously it's different because they didn't have the baby in them, but I feel like it's also not my story to tell, it's but your perspective, you know. But the way I see it is कि मतलब हमारा तो it was, we were ready, you know. मतलब this happened on the 23rd and my date was the 30th November, you know. So due date was the due date was 30th November, and when we went in we thought we were going to have a baby. We didn't know I'm going to go into surgery and I won't have a baby after that. So लेकिन I feel like he figured it out, and उसके लिए obviously it's difficult क्योंकि mentally आप उस चीज़ में occupy हुए होते हो. So for the past 9 months it was all we would talk about. It was ये इस तरह करना है, ये उस तरह करना है, blah blah blah, you know. And then also because he would have to, उसको सब कहते थे कि you have to be strong for her. You have to be strong for her, you know. That's what I wanted to talk about. So typical mentality होती है हमारी कि मर्दों ने बस strong रहना. They're not supposed to show emotion. They're not supposed to cry. They're supposed to have it together and be there for you. Basically, right? And he was doing a very good job at that. Lekin how was he dealing on his own? I don't know that. Because, you know, that's something that he was going on. It's going on with him. But वही वाली बात, एक support system बहुत ज़रूरी होता है. No, and this is what I want to talk about. Like मैंने ये बात इसलिए bring up की because I want to change that sort of mentality of people कि यार let the men feel as well. Yeah, of course. Yeah, take some burden off of them as well. Of course, you know? Like we would talk about it, but
his faith is way stronger than mine. So इमरान बिलीव्स कि जो होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी होती है और अल्लाह को बेहतर पता होता है इस बारे में. एंड ही ऑल्सो हैड दिस अदर पर्सपेक्टिव कि चलो ठीक है, अल्लाह ने औलाद लेनी थी, उन्होंने ले ली, लेकिन अल्लाह कुड हैव टेस्टेड मी एंड टेकन यू एज वेल, यू नो. सो ही लुक्ड एट इट दैट वे, क्योंकि आई हैड टू गो जनरल एनेस्थीसिया उसी वक्त, मुझे विद इन सेकेंड्स anything could have happened, you know. Especially because of the critical situation. So वो कुछ भी हो सकता था. तो वो his approach towards that was like that. लेकिन for maybe there are men out there जो कि उस तरह नहीं सोचते हैं और उनको एक support चाहिए होता है. और उनको एक बस you know robot की तरह they have to have it together and just do things. You know, so even people who've been through terrible accidents or other you know, other losses or loss of a parent or anything. जैसा हमारे लॉस ऑफ पेरेंट पे क्या होता है कि सडनली बेटे को जो है आ जाता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे पे आ जाती है. उसको तो टाइम ही नहीं दिया जाता कि वो सोचे, स्पेशली अगर फादर की डेथ हो जाए. That second he becomes the man of the house. And that second he has to decide everything and make sure that his mother is fine and his sisters are fine and his younger siblings are fine. वो वाले सारे situation होते हैं. Like literally everyone goes through that. And it's really sad. लेकिन वो वही वाली बात है, हमारी सोसाइटी है. ये चीज़ चेंज होते हुए बहुत टाइम लगेगा. This is part of the patriarchy जहाँ पर मर्दों को ये रोल दिया गया है and they have to be they have to be that. But they're not man enough. It's sad, but it's just like मैं तो जहाँ बोल सकती हूँ मैं कहती हूँ. If I feel like कोई इस तरह की बात करता है जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी वो है, मैं कहती हूँ why don't you start therapy? And वो फिर आगे से बोलते हैं name their wife. मैं ऐसे बात कर लेता हूँ ना. No, it's not the same thing. And I think especially not somebody that can feel what you're feeling so much. You know, और आप उल्टा उन पे और burden डाल रहे हो, किसी और पे अपना burden डाल रहे हो. Yes, because आपके spouse को बहुत ज़्यादा feel होगा what you're feeling. ठीक है, बात करो. I'm not saying कि आप अपने spouse से बात ना करो, पर्सनली लोग. but I'm just saying they don't have to be responsible for all your emotional load. Like, you know, that's your own responsibility. And you have to make sure that you're internally happy and you have to take the responsibility yourself. You know, if you depend on a spouse for that or a friend for that or anyone for that, it's not fair to them. and you're never going to feel it. क्योंकि कभी-कभी वो available नहीं होंगे. हर वक्त कोई आपके 24/7 service में नहीं हो सकता, you know. So that's what I also realized इस सारी situation में कि हर बंदा नहीं होगा आपके लिए हर वक्त, लेकिन जो उस वक्त है appreciate that, be grateful for that. I've also had friends that I've been friends with for a very very long time who weren't there, you know, at all. And मुझे वो चीज़ बहुत बुरी तरह फील हुई थी कि मतलब you know I was there for all their major milestones and this and that. लेकिन वो incidents like this make you realize कि if someone's not there for you, it's okay, you know, it's not their responsibility. आपने burden डाला हुआ है हर किसी पे. वो मेरी 7th grade की best friend है, वो उसने ये नहीं किया. Let it go. You'd be and seek more professional help if there is professional help available and if you can afford it, of course. So you know, opt for it. Makes sense. Okay, so like I mentioned earlier, you're my business partner as well. So let's talk a little bit about that. Can you tell everyone, because I already know, okay, you know how we sort of ended up working together. हमारी दोस्ती जो है, it goes back to A levels, and बीच में तुम चली गई. Let's talk about our friendship for a bit. वैसे yes, of course. कि जब तुम चली गई लंदन, लंदन जानी यूके मेरे लिए यूके लंदन सारा लंदन अब्रॉड गई थी. आई एम वन ऑफ दोस. लेट गई. हाँ, जब तुम चली गई इंग्लैंड. तो उस टाइम पे वी weren't that much in touch. No, on and off मेरी होती थी. हाँ, on and off होती थी. But like when I think about it कि even though हमारी friendship A levels में जाके हुई थी और तुम वहाँ गई भी and we weren't that much in touch. But somehow we always stayed connected. Like every time we would meet. हाँ. कि मेरा जो LGS वाला ग्रुप है, वो I would say even हम लोग 6 7 महीने नहीं मिलते हैं, लेकिन when we meet it's the same, you know. So you have certain friends like that जिनके साथ you don't have to talk every single day. I don't think anyone has time to talk to friends every single day, लेकिन it's just like, you know, आप बहुत से बाद में मिलते हो, लेकिन the bond is still there, it's still the same. So I feel like हमारा
the whole group. The whole group was like that. हाँ, अभी तक everyone's connected. जितना भी आप अलग-अलग हो जाओ. दूर हम लोग हैं. अब तो लोग इधर-उधर in different countries as well. लेकिन we're all still connected and very close. हाँ, और जब भी मिलते हैं, that's very nice. It's very nice, very wholesome, very wholesome. हाँ. And we could have never thought कि no. I'm one of those people जो लोगों को बोलती हैं दोस्तों के साथ business नहीं करो, family के साथ business नहीं करो. Because I've seen my parents do those blunders and I'm like नहीं, वो नहीं करना, पैसे वो नहीं करने हैं. लेकिन even I witnessed those blunders and even I thought कि मैंने कभी नहीं करना. So why did you decide to do it with me then? क्या हुआ ये था कि do you remember what happened? So we have this friends ka group on Instagram where you were asking about someone who's good with a certain craft. Yeah. And un dinon mein I was thinking about doing this. And I told you कि I know people, lekin I'm thinking about doing this. And then you told me कि मेरा ये idea है, what are you thinking? And I told you what my idea was. And we were literally on the same page. Yeah. And you were like, Pashmeena, why don't we do this together? Yeah. And I was like, wait, I need to think about this. I need time. And then I thought about it. And we met after that and we decided that we can do it together. The reason why I decided I can do it together with you is because I know how professional you are. And I've still seen it in our work that we've kept our friendship and our work very different. It's very separate, you know. ये नहीं होता कि हम काम पे बैठ के दोस्तों की बातें कर रहे होते हैं या अपनी लाइफ की बातें कर रहे होते हैं. When it's work time, it's work. And we don't go around अपने friends के group में बैठ के कि हम माश की बातें कर रहे हैं. So I hope it stays that way. It's too soon. Yeah, obviously. too soon. लेकिन it's finding the right balance. I feel like we've tried to achieve that. We've been doing this for almost 2 years now, more than 2 years now. लेकिन वो एक balance आपको करना पड़ता है, you know. Yeah, you basically दोनों की तरफ से अगर ये conscious effort हो कि you know don't let it meddle with your friendship. Yeah. And also like not to, I think business में जो problems आते हैं वो friendship में problems आते हैं कि you know जहाँ पे कोई ऊपर नीचे कोई बात हो जाती है. But I think so far we've been very careful, very understanding of each other's. Also, the way women do business is very different from the way men do business. At least in Pakistan, जो जितना मैंने देखा है. Okay, what do you mean by that? उसमें ये होता है कि we don't have just एक काम, right? It's like you have your in-laws, उनकी responsibilities, उनके काम, ठीक है. Then you have your own family, उनकी चीज़ें होती हैं, 100 चीज़ें. Then you have work बीच में. Then you also have social commitments. And if you're doing another job, you also have that साथ में. So just to find the balance और बीच में to find time for work, it's very important. And it's also very difficult. So we decided कि हमने सब कुछ legally करना है, हमने सब कुछ authentic होना है, सब कुछ clear paper पे होना है, ठीक है. We wanted to register business, we registered our business, we registered our partnership as well, सब कुछ हमने register करवाया है. लेकिन वो कितना मुश्किल था वो हम दोनों को पता है, ठीक है. तो वो चीज़ कितनी मुश्किल थी, आई थिंक वी बोथ नो दैट. Yeah, and honestly like हमारा ये सीन था कि जब when we started to do this business, I was pregnant and I had just gotten pregnant. मैं अपने first trimester में थी and in that first trimester जो कि by the way बहुत गंदा बहुत मुश्किल होता है. We traveled to KPK. We did our work and research and we came back. And that was just one of the things, right? Like हमारे बीच में family, शादियाँ, उसके like हमारे यहाँ उस तरह तो नहीं होता कि especially even if a girl is working या especially अगर वो business कर रही है. If she is working at an office ना, तो people still take it a bit seriously कि हाँ कि रोज़ उसने office जाना है. लेकिन अगर वो एक business करी which is her own thing, the family expects कि फिर तो आप कभी भी कर सकते हो. Everybody expects रोज़ क्यों जाना है. हाँ, stuff like that. हाँ. और especially क्योंकि I live far from where you live, so we have to manage that as well. So वो time वाला factor आ जाता है बीच में. There are a lot of other things जो बीच में आ जाती हैं. And then आप अभी ये सोचो कि I was pregnant and then हमने इतनी मुश्किल से and then COVID happened. Your father got COVID, you got COVID. Like it was just one thing after the other. And you know? Like आपकी personal struggle इतनी है कि आप work पे जाना, it's like a separate thing. Then as soon as we were about to launch,
I had my baby. And then when we literally had to stop our launch. So everything was done. And everything was done. And Rafa decided to come a little later. Yeah, he said, he's like, I'm here. So, wo hua. But, happy moments, lekin you have to put your work on hold. Yeah. Not complaining, but it's just... it's more complicated for a moment. People think. If she gets pregnant, if she has a baby, अब एक बच्चे के साथ business कराना, काम करना, obviously whole other thing. हाँ. लेकिन I also feel like कि even अगर मुश्किल है ना, take that step. हाँ. It makes you feel a little कि I have something that I own. मेरे पास भी कुछ है जो मैं करती हूँ. We're not making any money right now. और 2 साल में हम एक स्नेल की स्पीड पे चल रहे हैं, लेकिन हम कर तो रहे हैं. कुछ तो हो रहा है. So it's just कि अगर किसी के I still feel like मेरे पास अक्सर फ्रेंड्स आती हैं, मेरे ये आइडिया है, वो आइडिया है, ठीक है, and then they don't go ahead with it. And I feel like they don't go ahead with it because of the fear कि we're gonna fail. And it's fine if you fail as long as you do it. Take that step. So हमारा भी यही था. We're doing it, and I also think कि जिस तरह लोग मर्दों को ट्रीट करते हैं ना, when don't you remember how they were like when we were like registering our things and doing our paperwork and lawyers and stuff, they feel like you're secondary, and basically they don't take you as seriously. They don't take you as seriously. उनको होता है कि यार कोई मर्द होगा जो पीछे कर रहा है. या I remember you telling me once कि तुम पेंट करवा रही थी or something when you were doing the renovation, and painter goes like साहब को बुलाया. साहब को क्यों बुलाया? This is my responsibility. I'm doing this when I'm here. So that's something I've learned from my mother. क्योंकि जब साहब hospital में होते थे, mama would manage everything, and she never let anyone made her feel that way कि साहब की तरह. साहब नहीं है, मैं हूँ, मेरे सामने ये काम होगा. मैं ही करूँगी. So I call the shots too, And that's something I've learned from her कि आप कर सकते हो. You can do it, So she's done things obviously differently, लेकिन वही वो चीज़ होती है. You learn these things from family, from people around you. खैर, so it's Alhamdulillah, we launched it काफ़ी टाइम बाद, very slow, बहुत मुश्किल से. उसी के बीच में Pashmeena got pregnant, then obviously all that happened. लेकिन उसके बाद literally I think I was like 2.5 months after the loss, and I was like back. I was like, I need to work. Even if you're not doing it full time, it's something I'm occupied with. मेरा ज़हन लगा होता है कि अच्छा अब ये करना है, उमाश का ये करना है, उमाश का ये करना है. And we've both been, I think one of the things I really like about our partnership is that we've been very understanding about each other's situation, and the space that was needed and everything. It's going to catch speed hopefully soon. लेकिन अगर बीच में एक डिप आ जाता है तो it's fine. It's fine. Okay. लेकिन वो एक होता है ना, लोगों की एक वो लैंग्वेज होती है कि अभी तक नहीं शुरू हुआ काम. कब से कर रहे हो तुम? लोगों का तो काम है बोलना, कुछ तो बोलेंगे, वो वाली बात है. तो वो उसको भी साथ डील करना होता है, and then you have to be like नहीं, वो ये हो गया था और वो हो गया था. And at times I'm just like हो गया है, चल रहा है. Even if nothing's going उस वक्त. अच्छा, so because ये तुम्हारा फर्स्ट बिजनेस है, तुम्हें जनरली what were your, when someone starts something, तो आप किसी एक्सपेक्टेशन के साथ होते हो, फिर एक रियलिटी होती है. क्या तुम्हें डिफरेंस लगा कि what expectations did you have from starting and running a business, and what was it like? यार, for me, I honestly thought कि starting it would be way easier than it was. मुझे तो आपने सामान मंगवाना है, आपने ऑर्डर देना है, आपका सामान आता है, उसके बाद आप अपनी पैकेजिंग करते हो, and that's it, and you're done. लेकिन it's not like that. Yeah, there's too many steps, and it's not easy. And it's not easy at all. And the way we know हमने कितनी दफ़ा चीज़ें वापस भिजवाई हैं, we know हमारे पास कितनी दफ़ा ख़राब सामान आया है, फिर वो गया है, पैकेजिंग का कितना इशू बना, कुरियर का कितना इशू बना है हमारा, and it's not like कि maybe also because we wanted to do things in a specific perfect manner कि ये एक पैटर्न होगा, एक सप्लाई चेन होगी हमारे काम की. अगर शायद हम थोड़ा लाइटली चीज़ें लेते तो obviously if you want to do it right, then it takes all that effort as well. But we decided कि no, we're going to do things this way, because it's the right way to do it. I think, which is why it took longer, and which is why it was also difficult to set it up, launch it, and then start it.
ऑल्सो आई फील लाइक कि जो आपके लोग काम कर रहे होते हैं ना, सो बेसिकली ओमाश इज़ हैंडमेड प्रोडक्ट्स फॉर एनीवन हू डजंट नो. वी आर डूइंग हैंडमेड प्रोडक्ट्स, क्राफ्ट्स, बेसिकली फोकस्ड ऑन होमवेयर फॉर नाउ, बट एक्सपैंडिंग इनटू अदर हैंडमेड थिंग्स as well. हाँ. मेन हमारा वो ये था कि ये जो चीज़ें होती हैं ज़्यादा ये औरतें करती हैं, सो वी वांटेड कि हम डायरेक्टली उनको अप्रोच करें, लेकिन वो इस तरह नहीं होता. सो देयर मेन बीच में जो कि आपको उन औरतों से डायरेक्ट नहीं होने देते. सो वो कहते हैं आप हमें बताएं, वो कर देंगी काम आपका, आप हमें बताएं, वो कर देंगी. एंड वी हैड टू प्लेस ऑर्डर्स लाइक दैट इज वेल. लेकिन वी मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि हमारी प्रोडक्ट्स जो हो वो औरतें इस तरह हो, अगर बेशक औरतें ना हो लेकिन क्राफ्ट्समैन से हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करें. देयर इज नो मिडलमैन. Yeah, so that most of the money goes to them. Goes directly to them, because if there's someone else बीच में वो अपना कट ले रहा है, फिर वो आगे अपना कट, तो वो बस वही वाली बात है कि eventually जो actual craftsman है उसके पास कितना उसके पास तो कुछ नहीं जा रहा ना. and that doesn't align with our aim. No, not at all. This is also what I've brought back from my place, from where I belonged. कि वहाँ पे ये चीज़ें होती थी, औरतें एम्ब्रॉयडरी हाथ से करते थे, औरतें चीज़ें हाथ से बना रही होती थी, you know. And when we spoke about that, it's just that I was like, this is it. This is what I want to do. And I just hope it has that impact that we want it to have on those people who, you know, we get products from. मुझे पता क्या एक चीज़ लगी कि वर्किंग जैसा मेरा पिछला जो बिजनेस था दैट वाज कंप्लीटली माइन. एंड दिस इज़ विद अ पार्टनर होने के बहुत फ़ायदे होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड. हर चीज़ आपको सारी खुद नहीं करनी पड़ती. डोंट यू थिंक दैट आल्सो मेक्स इट डिफिकल्ट? मैं उसी पे आने लगी. लेकिन उसके कॉन्स ये हैं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज दोनों की फिर चीज़ जिस तरह वही था कि कभी तुम्हारे मसले कभी मेरे मसले, अप्रूवल्स दोनों के चाहिए होते हैं. यू हैव टू लाइक, ज़ाहिर है हर वक्त मिलना वो करना, इट गेट्स डिफ़िकल्ट, इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड. एंड हर किसी जिस तरह मेरा ये है कि मेरी और भी चीज़ें, तुम फुल टाइम उमाश पे हो, मेरी और भी चीज़ें, तो उसकी वजह से भी डिले होता है कि अच्छा पश्मीना आई हैव दिस गोइंग ऑन एज वेल एंड दिस गोइंग ऑन एज वेल एंड यू नो ऑल ऑफ दैट. और ऑब्वियसली तुम्हारी और भी चीज़ें होती हैं. सो working with a partner definitely slows it down. Yeah. But I couldn't have done another business without a partner, because सारी responsibility और सारा कुछ मैं खुद कर ही नहीं सकती थी. हाँ, especially because तुम्हारे जो तुम्हारा ज़्यादा local background है, I don't have. That's helping a lot. Like सारी product वाली side is literally you. तो वो जो हम एक दूसरे को support दे पाते हैं, me in other areas and you in those areas. That really works out. I also feel like कि हमने किसी तरह वो एक चीज़ डिफाइन की हुई है कि this is what I'm doing, this is what you're doing, you know. So I think it's not, even if it's not said out loud, it's still clear. Yeah, it's clear. हाँ. कि ये इसका काम है, ये मेरा काम है, ये इसका काम है, मेरा काम है. तो उस तरह करके चलते हैं काम. लेकिन अगर वही वाली चीज़ है, this could also be a problem. अगर for example if someone else wants to do it and they're like नहीं ये इसका काम है तो ये क्यों नहीं हो रहा है, अगर वो नहीं हो रहा कभी, it's fine, you can take responsibility, you can do their हाँ, but that's वो एक attitude की बात है और एक उसकी बात है कि obviously it's not like कि जब तुम प्रोडक्ट पे काम कर रही होती हो तो आई एम एब्सेंट, या अगर मैं दूसरी चीज़ों पे काम कर रही हूँ तो सो we're there, we understand. बट एक होता ना लीड लेना किसी चीज़ पे. सो आई थिंक एंड दैट्स नेसेसरी इन एनी पार्टनरशिप कि एक बंदे को एक चीज़ पे लीड लेनी होती है. अगर वो नहीं लेगा तो वैसी खिचड़ी मच जाएगी इफ एवरीबडी इज डूइंग एवरीथिंग. जैसे हमारा जो व्हेन वी वर सेटिंग अप द बिजनेस, व्हाट आई रियली लाइक्ड वाज कि मैंने उसके बाकी सेटअप के ऊपर आई टुक द लीड, यू टुक द प्रोडक्ट एंड के पे लीड, एंड आई थिंक दैट मेड अ रियली गुड पार्टनरशिप. हाँ. सो मतलब जो एक बंदे की स्ट्रेंथ है वो दूसरे की वीकनेस भी है, तो इट्स ओके. एंड ऑल्सो आई फील लाइक इन अ पार्टनरशिप यू ऑल्सो लर्न अ लॉट. So there's certain things जो कि मुझे नहीं पता होती and I learn from you because you've done those before. Yeah. Also like since you've had a business, so तुम्हें पता था कि ये चीज़ नहीं चलेगी. This is a failure. Some experience. Some experience, you know. Obviously, this is a completely different business and it's a completely different work. Way of work भी हमारा काफ़ी obviously उससे मुख्तलिफ होगा. लेकिन आप फिर भी सीखते हो एक दूसरे से चीज़ें. And I think इसलिए भी partnership
it's also good. Also I feel like एक burden हट भी जाता है थोड़ा सा ना, कि आप 2 लोगों की चीज़ है, आप अकेले एक चीज़ कर रहे हो तो बहुत डर लगता है. The responsibility is a lot. So जब तुमने ये मेरे साथ business start करने का decide किया, ठीक है, so what was your how did your family take it? How did your in-laws take it? How did your husband take it? What was their role in it? अच्छा, so हम ना initially when I came back from England ना, I applied for I don't know how many jobs. मैंने पता नहीं कितनी jobs के लिए apply किया था. मैंने पता नहीं कितने interviews दिए हैं. I've been there. Majority जगहों पे ये होता है कि it's like they want experience, right? So when you're a fresh graduate, you don't have that. ठीक है? But no one's willing to take the risk on you unless you're obviously very extraordinary or something. खैर, so that process went on for 6 months or so, and I was so disheartened. I was like, मैं नहीं कर रही हूँ यार, मैंने तो ये चीज़ करनी भी नहीं थी. I was just doing it for the sake of it कि मैं कोई job experience मिल जाए मुझे, you know, कि how does the corporate world work? So उसके बाद when I decided कि अच्छा अपना काम करना है, and I remember when I told my mother-in-law that, she was so supportive about it. She was like कि बच्चे तुम करो, मैं भी अभी सोचती हूँ कि मुझे ये करना चाहिए था, मैं सोचती हूँ मुझे वो करना चाहिए था, you know. So she was on board with it, and she was like very supportive, very proud of it कि मेरी बहू कुछ कर रही. She doesn't have a daughter, so maybe इसलिए ज़्यादा proud हो रही थी. लेकिन वो एक चीज़ हो रही थी उनको, she was understanding कि ये this is something that women need, you know, to do. The same was with my mother. My mom's helped so much with the product side. उनको पता होता है कि क्या कहाँ से मिलेगा, क्या किस तरह करना है, प्राइस तुम लोग को ये ज़्यादा दे रहे हैं, ये वो कम बता रहे हैं, you know. And just even though अभी it's not like मैं उनको बता सकती हूँ कि हाँ मैं पैसे कमा रही हूँ, you know, like इतने पैसे मुझे महीने के आ रहे हैं कुछ भी, लेकिन फिर भी उनको पता होता है कि एक effort है. It's like going into a well, eventually it's going to show up, लेकिन अभी it's not, but it's that support. So if I had people like that, or if my husband was like that कि नहीं घर बैठो क्या करना है, वो मैं किसी भी वक्त मुझे होता है कि मैंने ड्रॉप होना है हमना की तरफ, leaves everything, he drops me. He has a full-time job, a very tough job, you know. लेकिन वो he makes sure कि I get that space if I want to do something, कि बाद में इसको ये regret ना हो कि यार because of this constraint मैंने ये नहीं किया, you know. So it's very important. And I feel like so many girls don't end up doing something क्योंकि उनको पता होता है support नहीं है. Lack of support, you know. So even if you have support of, for example, your own parents, but if your in-laws are not supportive, अगर आप उनके साथ रह रहे हो फिर आप नहीं कर सकते. हाँ. इनफैक्ट आपके पेरेंट्स बेशक ना सपोर्ट करते हो, लेकिन आप इन-लॉज के साथ रहते हो और वो सपोर्ट कर रहे हैं, या दैट्स अ बिगर थिंग. एग्जैक्टली. तो वो आपको बहुत ज़रूरी होता है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या वन ऑफ द थिंग्स जो मैं इन-लॉज के सपोर्ट में एक बात करना चाहती हूँ वो ये है कि देखो एक ही चीज़ होती है कि आपके इन-लॉज के यार तुम ये नहीं कर सकती या फलाना नहीं करो, ठीक है, एक वो चीज़ होती है where it's a flat no, you can't or you shouldn't, right? But पता है क्या, that's just the start of a support. जो true support है ना that in-laws can and should be doing is that if you do allow let another debate. Yes, your daughter-in-law to work or do her business, do anything, whatever, but still putting all sorts of burden on her is not support. No. ठीक है. If you still expect her कि वो even though वो और आपका बेटा दोनों काम कर रहे हैं लेकिन घर पूरा वो संभालेगी, ठीक है, that's not support. And if you're saying कि अच्छा नहीं तब भी तुम जो हो हर डिनर पे भी आओ, हर चीज़ पे भी आओ, खाना भी लगाओ, रोटी भी बनाओ, सफाई भी ठीक हो, सब बच्चे भी फर्स्ट क्लास हो तुम्हारे, घर भी टॉप, putting that pressure on her. हर घर में दावत पे भी उसने पकाना है और भी देर होना है, चाहे वो आपकी दावत है, चाहे वो फलानी आंटी की है, किसी आंटी के घर आपके साथ जाना है, तोहफे भी लेने. That is not support. Support is where you take that burden off of her. कि यार ठीक है कोई ज़रूरत नहीं है फालतू की चीज़ें, जो चीज़ें नेसेसरी हैं, I understand. फालतू की चीज़ों के ऊपर वो प्रेशर डालना, that's not fair. लेकिन also I feel like हम ना ये boundaries आपने खुद भी इन पे मेंटेन करनी होती हैं. I know कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है यार, ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. I can understand. Most women I know, they have supportive in-laws because their in-laws are not stopping them from anything, ठीक है, but they are doing everything.
and that is driving those women crazy. Yes, it can get overwhelming. I'm sure that it can get overwhelming. और वो उसी शुक्र में कि अच्छा चलो एटलीस्ट करने तो दे रहे हैं because बात ये कि at the end of the day you have to pick and choose your battles, and which is what then your in-laws hold over your head. कि हम तुम ये सब करने दे रहे हैं ना, तो then you don't have a fight उस तरह से left कि अब तुम बोलो कि नहीं लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं, फलां के इन-लॉज तो करने भी नहीं दे रहे हैं कुछ, एटलीस्ट माइन आर लेटिंग मी डू समथिंग, यू नो. नो, इट्स नॉट इवन दैट. इट्स लाइक कि देखो अगर वो तुम्हें ये करने दे रहे हैं बिकॉज क्लियरली इट्स समथिंग दैट दे आर लेटिंग यू डू, तो अब आप उनसे और तो फाइट नहीं कर सकते कि अब मैं ये नहीं करूँगी और मैं ये भी नहीं करूँगी, क्योंकि वो एक इजाज़त तो मिल गई है ना. हाँ, सो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट दिस इज अ बाउंड्री यू कैन नॉट ड्रॉ बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकिंग something so big. अगर उनको ये समझ है कि अच्छा मेरा बेटा और बहू विल मैनेज, ठीक है, जिस तरह भी वो करें विद हेल्प, इफ़ दे चूज़ टू हैव हेल्प, और इफ़ दे कैन मैनेज इट ऑन देयर ओन, अपना घर अपनी स्पेस, तो दैट्स देयर हेडेक, ठीक है. अनलेस यू फील लाइक वो बहुत सफ़र कर रहे हैं इन द रिलेशनशिप और उस तरह, फिर आप इंटरफेयर करो, लेकिन वैसे किचपिच करने की क्या ज़रूरत है, मतलब यू नो वो नहीं करनी चाहिए. तो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह का मुझे प्रेशर नहीं है, विच इज़ वाई आई फील लाइक मैं ज़्यादा चीज़ें खुल के कर सकती हूँ. लेकिन आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कभी कभी मुझे लगता है कि अगर इस तरह का कुछ होता है एंड आई पैनिक, यू नो, कि ओ शिट मैंने वापस घर पहुँचना है या ये है वो है, तो उसमें फिर व्हेन आई थिंक अबाउट अदर पीपल हु गो थ्रू दीज थिंग्स एंड आई एम लाइक it's really stressful. Yeah, it's really stressful. Really stressful. Yeah, so वही बात है कि इस तरह की चीज़ों में it's so much more complicated for a woman to do these things because even if eventually that they are letting her do it and she is doing it, it doesn't make it easy for her. Yeah. It's 10 times more difficult. वही भी मैं अपनी टीम में भी लड़कियों को बताती हूँ कि you need to understand that you have to work harder. Yes. तुम्हारे काउंटर पार्ट्स पे जो बंदे हैं और जो तुम मर्दों को देख रहे हो, यू हैव टू वर्क हार्डर देन देम, लाइक यू नीड टू रियलाइज दिस. और मैं उनकी भी कहती हूँ कि वैल्यू योर टाइम नाउ, क्योंकि अभी उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, वो नहीं है. It will change. It doesn't have, not necessarily, but responsibility तो आएगी ना. Responsibility even आएगी. if a house, very supportive in-laws, responsibility आती है. Yeah, responsibility. So I'm like, अगर तुम इस वक्त जो है 10 घंटे काम कर सकते हो या काम भी नहीं, you can pursue what you love. Do it now. Don't waste your time. And हमने you know the sad reality is कि अभी Imran was hiring someone for a position, ठीक है, and वो CVs like वो देख रहा था, तो मैं लैपटॉप पे साथ देख रही हूँ, तो एक बंदे का नाम आया, दूसरे बंदे का नाम, तीसरे बंदे का नाम आया, and I'm like लड़कियों क्यों नहीं है, तुम लोग किसी लड़की को हायर करें. He's like पश्मीना, girls are not applying. हम जाके किस तरह वो करें, girls are not applying. And then I thought about it, क्योंकि थोड़ी सीनियर पोजीशंस हैं, तो लड़कियां नॉट अप्लाइंग क्योंकि देर मैरिड एंड नाउ दे कांट डू दोस थिंग्स, क्योंकि उस रैट रेस में, उस रेस में आप लगे हो, कॉर्पोरेट लैडर वाली जो एक कॉर्पोरेट लैडर है, उस पर अगर आप पीछे 1-2 साल भी रह गए, आप रह गए हो. हाँ, बहुत कम. पाकिस्तान में तो सी लेवल पे कोई बहुत, आई डोंट थिंक देयर इज एनीबॉडी किसी भी कॉर्पोरेट में. अब शायद कुछ फ्यूचर में आना शुरू हो जाए बिकॉज थिंग्स हैव बीन डिफरेंट. अभी बट आई हैव फ्रेंड्स हम ना जिनके बॉसेस औरतें हैं एंड दे डोंट टेक देम सीरियसली. उनसे इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स नहीं दिए जाते. मुझे बात इतनी बुरी लगती है कि अगर जस्ट बिकॉज शी इज़ अ फीमेल बट शी उस बॉस की वो रिस्पेक्ट ही नहीं है. सिर्फ सर्टेन प्रोफेशंस में है, लाइक टीचिंग में है, मेडिसिन में है, टीचिंग और मेडिसिन में. और अगर कॉर्पोरेट में उस औरत ने भी उतनी मेहनत की है ना, लेकिन उसको डबल मेहनत की है पश्मीना, ये मैं कहना चाह रही थी, उसने डबल मेहनत की है. लेकिन जो उसके जूनियर्स है उनको फिर भी होता है लड़की आ गई है, ये आ गई है. That is so sad. शादी नहीं हुई ना, फारिग होती है, इसलिए this is first hand knowledge from someone, like you know people like this. Yes, I know so many people like this. Obviously I can't name them right now, लेकिन I know so many people like this, जो क्या होता है कि एक लड़की थी जिसकी शादी नहीं हुई थी, and she was really good. ये इसलिए क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई, वो फारिग है, सारा दिन ऑफिस में बैठी होती है, वेली है, you know, stuff like that. Yeah, like they're not happy with either situation, बस disrespect है ना, respect ही नहीं है उसकी. Disrespect. हाँ, that's so sad. Yeah, and वो उन लोगों की वाइफ्स काम कर रही हैं खुद, और मैं वही सोचती हूँ कि यार कल को someone's going to treat your wife like that, कि अच्छा by treat I mean disrespect, you know, like कि मैं ये आ गई है, not take her seriously, उसकी जॉब, उसकी मेहनत, उसकी पोजीशन की रिस्पेक्ट ही नहीं है जो एक मर्द की होगी. और क्यों नहीं है, like these are men we grew up with, these are people I know, they should be educated people, why are they like this, well informed, you know, why are they thinking like that. Lekin that's something I cannot change, you know.
I can't go into their head and be like, no, respect women, you know. And वही वाला वो सारी कहानी शुरू हो जाती है फेमिनिज्म के उस पर चल रहे हैं. लेकिन this is just basic knowledge आपको होनी चाहिए. You know, you need to understand this. कि if someone's working that hard, if you're going to listen to your male boss like that, listen to your female boss like that as well. क्योंकि there's a chance कि अच्छा, there's another friend of mine जो कि मुझे अपनी फीमेल कोलीग का बता रहा था कि उसके 2 बच्चे हैं. एंड शी वर्क्स एंड शी इज़ अ वेरी 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 हार्ड वर्कर. एक बैंक में काम करती है वो औरत. वो जाती है उन बच्चों को पिक करती है, फिर वो लाती है उन्हें, फिर वो बाकी काम करती है, वो ड्रॉप भी कर रही होती है सुबह, यू नो, एंड देन शी हैज़ टू गो होम एंड मैनेज ऑल ऑफ दैट एंड शी स्टिल गॉट इट हर जॉब, यू नो. सो that's the story of I think 90% working women. Even girls in my team, ये तो चलो married and kids हैं, but girls in my team वही मैं देखती हूँ कि उनके ना, there's boys in our team, there's girls in our team, ठीक है, उनके लड़कियों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं. सो व्हेन दे हैव टू कम टू वर्क और दे हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, एनीथिंग, दे हैव टू फाइट फॉर इट कि मुझे 1 घंटा और रुकना है, मुझे 1 घंटा ये करना है. दे लव देयर वर्क, दे वांट टू डू इट, दे नो कि इट्स गोइंग टू मेक देयर करियर सो मच बेटर. बट women have to put up a fight for every. So like we have to start this podcast late and your colleague was running. Yeah, she's like कि मैं इससे ज़्यादा लेट नहीं हो सकती. I have to go home. And even though वो young लड़की है, लेकिन एक तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो रिस्ट्रिक्शन है ना. लेकिन हम ना ये भी हो सकता है कि एक तो we're so afraid to ask. There's a possibility if you sit down with your parents and you tell them कि कभी कभी मुझे लेट रुकना पड़ेगा काम के लिए. So मैंने अपनी उसी टीम मेंबर के साथ, उस लड़की के साथ who has this problem, I've had this conversation with her कि you know you have to sit down with your father, you have to make him understand. And you know she's doing that fight every day, Pashmeena. वही तो मैं कह रही हूँ, उसको वो मेहनत करनी पड़ रही है. It doesn't come as a privilege for her. It's जो मर्द रियलाइज नहीं करते कि उनका प्रिविलेज है कि उनको ये फाइट रोज नहीं करनी पड़ती. Yes. वो कर रही है. She's having that conversation. जिसमें sometimes she feel like you know she's banging her head against a wall कि उनको नहीं समझ आ रही है बीबी. But वो रोज कर रही है, उसको करनी पड़ रही है, उसको एफर्ट डालनी पड़ रही है. Want to work, लेकिन they have husbands who are like तुम्हें क्या जरूरत है. You know, I have friends who work and then they have to come home and they have to take care of the husband who also works, लेकिन ये भी तो काम कर रही है ना जाके. उसने उस पूरी चीज़ का और फिर इन-लॉज का भी ख्याल करना है और फिर खाने भी बनाने हैं. हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि सपोर्ट, हाँ, प्रॉब्लम इज कि सपोर्ट डजंट स्टार्ट, it doesn't even start where you let them, because that's not a requirement of support in the first place. वो जो like you said, वो right है. तो वो support तो नहीं है, वो उसका valid right है. Support तो start होती है where you make it convenient, don't bring problems in the way. Right? It's also like, you know, you tell someone that and they'll be like, बच्चे ये तो शुक्र करो तुम पढ़ी लिखी हो, शुक्र करो इस तरह के लोग मुझे. Basically, this basic stuff is too much to ask for. You know, it's too much. So फिर आपको होता है कि अच्छा शुक्र करना चाहिए. You know, you should be grateful. And you should be, of course you should be grateful. Of course, people have it worse. People have it worse does not mean that you don't have it bad. Like, you know, these things. It's your problems are still valid. हो सकता है उस बच्ची के लिए वो मसला है कि यार मैं 7 बजे रुक रही हूँ, तो उसको वो स्ट्रेस, वो जो 1 घंटा गुजार रही है, वो उसका प्रॉब्लम है ना. That's really bad. लेकिन वो हमेशा ये होगा कि यार एटलीस्ट तुम्हें काम तो करने देते हैं. उससे तो काम ही नहीं है. तुम काम तो कर रही हो ना, तुम इतने घंटे काम कर रही हो. हमारी फर्स्ट फाइट औरतों की है फॉर देयर राइट टू वर्क. And the second fight is the support if they still have to be responsible like crazy for everything else, it's like you know आपको सजा है. It's like कि अगर आपने if you've decided to work, अब भुगतो वाली चीज़ है. अगर काम नहीं कर रही होती तो ये सब तो अपनी लाइफ मुश्किल की हुई है, तो छोड़ दो. हर किसी का होता है कि अच्छा बच्चे नहीं हो रहे, अच्छा तो छोड़ दो काम. और ना आई नो पीपल अराउंड जो कि कहते हैं बड़ी करियर ओरिएंटेड है. उस तरह की बड़ी करियर ओरिएंटेड है, ठीक है. एंड मुझे इट्स जस्ट सो फनी फॉर मी कि यार वो बड़ी करियर ओरिएंटेड है. व्हाई इज दैट अ बैड थिंग? यू नो, वो बेचारी पढ़ लिख के उसने उधर तक वो किया है, ठीक है. और
पश्मीना इकोनॉमी के हालात ख़राब होने तो सबके अब कहेंगे जाओ डबल इनकम प्लीज काम करो बेटा. No, and it's happening. It's happening. Yeah. It is happening. Yeah. उस दिन Because double income is a necessity now. मामा की जो सफाई वाली है वो मुझे कह रही थी कि हम बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं. आई वाज लाइक इट्स रियली बैड, लाइक यू नो आई वाज आल्सो कंप्लेनिंग टू हर कि थिंग्स आर रियली बैड एंड शी इज लाइक बाजी आप लोग ये कह रहे हैं तो सोचो हमारा क्या हाल है. कहती लेकिन शी सेड दैट कि फिर मैं ये सोचती हूँ कि द मोर इनकम यू हैव द मोर योर एक्सपेंसेस आर, द मोर Yeah, obviously. Basically आपका जो लाइफस्टाइल है ना चेंज होता रहता उसको रिटेन करने के लिए, अगर इकोनॉमी बुरी हो रही है ना तो आपका जो भी लाइफस्टाइल है उसको रिटेन करने के लिए तो आपके तो हालात बुरे होंगे, चाहे वो बुरा हो चाहे वो बहुत lavish जो भी हो. Yeah. But if the economy is bad, if the economy is bad, it affects whatever lifestyle you're at. Yeah, and you obviously want to retain that. Yeah, and I know so many people who are just like बस पाकिस्तान छोड़ के जाना है, एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हालात ख़राब हो रहे हैं, एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. दिस कुड बी एन एग्जिट स्ट्रैटेजी ना, लेट द वाइफ वर्क, maybe you won't need that exit strategy. सही पश्मीना, that was a very nice conversation. बहुत मज़ा आया. फ्लो में आ गई थी, फिर आपको फील तो नहीं हुआ बहुत ज़्यादा? Yes, you were. I think you were very confident. बीच में like once you got in the flow, you were okay. Good. मुझे बहुत मज़ा आया. I hope आप लोगों को भी आया हो. You enjoyed this conversation. तुम कह रही थी ना कि हमारे टॉपिक्स बहुत सैड है. मुझे लगा बहुत sad है. No, but the thing is, like the good thing is that we talked about all of these very serious things, but in a very non-serious way. in a nice, light, conversational way, you know. Yeah. So we didn't want this to be very heavy on anybody's heart. Yeah, but these were important things that we just wanted people to know. That are important. So I hope that आपको बहुत insight मिली हो इससे. I think one of the best conversations I've had in the podcast. The flow was so good. बहुत मज़ा आया मुझे. I was really into it. So I hope that you guys were as well. Anyway, don't forget to like and subscribe, and please leave comments on what you think. I'll see you again next time. Allah Hafiz.